verbs. Action, you know what action? Which we are doing in our regular work. These all are called action words. That is all doing word. As like eat, read, run, brush, cook, cry, laugh, swing, or all the things. These are called action words. That means we are doing that by our physics. Which work we do by our physics, that all action are called action words, and action words are called verb. Eat, and when we put ing with any action word, that means that action is still going on. That means that it is still happening. And like Seema is eating food, that means Seema is still eating a food. Eating her food. My mother is cooking good food. My father is reading newspaper. Rohan is brushing his free teeth. A little baby is crying loudly. We all are laughing on a joke. Alright, these all are called action words. That means which a human being do by its own body and which reaction he shows to in front of another candidate. These all are called action words, and these action words are called verb. Remember this now. I am going to write some statements here and you have to find out the action words. Look at here, 4 statements are here, okay? First statement I am going to read and you have to find out the doing verb. That is the action word, the verb here. First statement, my mother is washing clothes. Second, children are playing. Third, Amit is working on laptop. And fourth is Granny is telling story to us. In very first, my mother is washing cloth. What mother is doing? Mother is washing clothes. So, washing is a doing word and that is action word. In second, children are playing. What are children doing? They are playing. So, doing word is playing. So, playing is an action word and this is a verb. Third, Amit is working on laptop. What is Amit doing? Amit is working on laptop. So doing word is working. Next, Granny is telling story to us. What is Granny do with us? Granny is telling a story. Telling is a doing word. Action word. And in first, action word is washing. In second, action word is playing. In third, action word is working. And in fourth, action word is telling. And these action words are called verb. Look at your book, page number 37. Few action words are given here, right? Sleeping, playing, eating, studying, dancing, walking, jumping, hopping. These all are action words. Now exercise is given here. Look at the word given below. Circle the words which are action words. You have to circle action word. First is yellow. This is a color. So give. Give is an action word, right? We used to do to give anything to one person to another person. That means that is a doing word. Circle, give, then read. Yeah, reading is also a doing word. We read books, right? So read is also a doing word. Circle
See. We use our eyes to see anything. So this is a doing verb. Watching, seeing, these all are doing verb. So circle C. Face. Face is a body part, not a doing thing. So face and door. Door is a thing. Room is a place. Happy. Happy is a emotion. Breathe. Yeah, we take breathe, right? We take breathe by our nose. So this is a doing verb. We are using our nose for breathe. So circle breathe and then take. Take means take anything from any person. So take is also a doing thing. So in this, give, read, sleep, write, see, breathe and take are doing words. So circle all that. These all are action words and verbs. Now look at this action. Okay. Few pictures are given here and few statements are also there with the picture. In first picture, children are playing. Playing is a doing verb. This is an action word, right? So circle playing. Grandma is telling a story. Grandma is telling a story. Telling is a action word. So circle telling. Mother is cooking food. Cooking is an action word. That's why circle cooking. Gardener is watering the plants. Watering. So circle watering. Rohan is taking a bath. Taking is an action word. Children are flying a kite. Flying is an action word. Vicky is going to school. Going is an action word. Family is eating dinner. Eating is an action word. Gopi is selling fruits. Selling is an action word. Kana is writing a letter. Writing is an action word. Which action we do by our body? These all action are called action words. Verbs. So I hope this chapter is clear to you all. Students, do exercise which is given in your book. Now let's move to another chapter, which is chapter 11. This, that, these and those. In page number 43. This, when we indicate something which is stable near to me or near to us, which is the nearest thing, and we indicate on that, we will use this. But a single thing, which is near to us and we indicate that thing, then we will use this. And when that thing, that thing far away from us, that means that is in some distance from us, then we will use that to indicate that thing which is there in some distance with us or which is far away from us, then we will use that. But for the single thing, these, when we point more than one things, but these things are near to us, that means when we point things which are more than one, that means these are plurals which are more than one, when we indicate that things, we use these words. What we use? These words. But for more than one thing.
sentences or by words. Students, look at here. 4 statements are given here, 4 sentences are given here, but here is fill in the blanks. But that means in every statement there is a blank, and here a picture and indication. These arrows shows indication. Okay. With the help of these arrows, we will find where we have to put this, where we have to put that, these and those. So in very first statement, blank is here. This is a car, indication, and that is near. Near from indication. See, that is near from indication, and that is a single car. And when we talk about single, we always use this and that. And when the thing indicated that is near to the object, we will use this. This is near to the indication, right? That's why we will use this. Now in second statement is a tree, and tree is far away from the indication, right? Look at the distance, far away from the indication sign. So, but this is a single tree, right? And when a single thing is there, we will use this or that. But this is far away, so we will use that. Now, third number is here. Third number is here are caps, and these caps are near to the indications. They are more than one, so we will use these or those, but according to indication. And indication shows these caps are near. So when near is here, we will use these. Are cups. Cups is plural, and when plural is there, we will use these or those. And first of all, we have to see the indication, and the indication shows that they are far away from the indication. They are far away from the indication, so we will use those. Okay, I hope this is clear to you all. This will use for a single thing, but it is near. That will use for a single thing, but it is far away. These use for plural things, but these are near, they should be near. And those use for plurals, but they should be far away from us. Okay, near and far. The near indications are this and these, and the far indications are that and those. This and that used for single thing, these and those are used for plural things. Okay, I hope this is clear to you all. We will repeat it in our next class. Till then, complete your work. Try to do exercise which is given in this chapter. You have to do chapter 9 and chapter 11 by yourself, and you can take the help of your parents and other ones. We will meet again in our next class with recall of this exercise and new exercise. Till then, complete your work. Bye bye. Thank you and take care. Good morning students. So this is your second period and this period is of Hindi language. So take out your Hindi language. बच्चों ये आपका हिंदी सेकेंड यानी हिंदी लैंग्वेज का पीरियड है, तो आप अपनी हिंदी लैंग्वेज की बुक, हिंदी व्याकरण की बुक स्वरांजलि हिंदी व्याकरण निकालें और पेज नंबर 31 ओपन करें. ओके, पेज नंबर 31. आपको कौन सा पेज नंबर ओपन करना है? पेज नंबर 31 अर्थात पृष्ठ संख्या 31. ठीक है बच्चों, इससे पहले मैंने आपको पिछली कक्षा में सर्वनाम पढ़ाया था. सर्वनाम में मैंने आपको पढ़ाया था कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं. सर्वनाम सभी का नाम, जैसे मेरा नाम है, कुछ जो मेरा नाम है, आपका कुछ नाम है, कोई आपकी मम्मा का कोई नाम है, लेकिन हम सब उन नामों की जगह पर क्या प्रयोग करते हैं? उसे बुला दो, वह आया है, तुम कब जाओगे. तो ये जो शब्द है इनका प्रयोग हम किसी के नाम के स्थान पर
से अभ्यास कार्य पूरे करा दिए थे। आज मैं आपको पाठ 8 विशेषण पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं पाठ 8 विशेषण। पाठ 8 और पाठ 8 का नाम क्या है? विशेषण। बच्चों जब आप यहाँ पर देख रहे हैं तो आपको क्या दिख रहा है? विशेषण में एक शब्द दिख रहा है विशेष, ठीक है। क्या दिख रहा है? विशेष। विशेष का मतलब कोई चीज अलग होती है, कुछ स्पेशल होता है इसमें, ठीक है। जैसे मैं आपको अभी, आप अपनी पुस्तक में देखिए, पुस्तक में यहाँ पर एक लड़की अपने इसे चाय पी रहे हैं दोनों, ठीक है। चाय कैसी है? यहाँ पर चाय के बारे में बताया है, तो नीचे लिखा है गरम चाय पी लो। तो क्या पता चल रहा है यहाँ पर? चाय कैसी है? गरम है, ठीक है। इसके बाद दूसरा चित्र बना है घड़े का, ठीक है। और घड़ा कैसा है? घड़े के बारे में लिखा हुआ है घड़ा गोल है। तो घड़ा कैसा है? गोल। तो यहाँ पर घड़े के बारे में हमें पता चल रहा है, उसकी विशेषता पता चल रही है कि उसका आकार पता चल रहा है कि घड़ा कैसा है? घड़ा गोल है, ठीक है। आइए बच्चों मैं आपको कुछ और उदाहरण देती हूँ विशेषण समझने के लिए। बच्चों आगे चित्रों में देखिए, एक दुकानदार कपड़ा दिखा रहा है और दूसरा व्यक्ति उससे क्या कह रहा है कि 2 मीटर कपड़ा दे दो, ठीक है। तो कपड़े की क्या विशेषता है? वो कितना कपड़ा मांग रहा है? 2 मीटर, ठीक है। अभी आप इन वाक्यों को समझें। फिर आगे कोयल बनी है और कोयल के बारे में बताया गया है कोयल काली है। तो कोयल कैसी है? काली है। तो बच्चों ये इन वाक्यों में आपने कुछ समझा? इन सभी वाक्यों में जो भी ऑब्जेक्ट है या जो भी आपकी चीजें हैं उनके बारे में कुछ ना कुछ बताया गया है, ठीक है। जैसे हम आगे देखते हैं, यहाँ पर मैंने आपके लिए 4 वाक्य लिखे हैं। इन चारों वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और देखिए कि इसमें हमें क्या बताया गया है। पहला वाक्य है कौवा काला है, ठीक है। कौवा काला है। तो यहाँ पर कौवे के बारे में बताया गया है कि कौवा कैसा है? काला है। तो इस काले शब्द को हम यहाँ रेखांकित करेंगे, ठीक है। पहले हम समझते हैं। 1 गिलास पानी दे दो। तो यहाँ पर गिलास पानी दे दो कितने? तो यहाँ पे पानी मांगने में जब उसने मांगा तो क्या बोला? 1, ठीक है। तो कितने गिलास पानी देना है? 1, ठीक है। इस शब्द को भी हम रेखांकित करेंगे। फिर संतरा खट्टा है। संतरा कैसा है? खट्टा है, ठीक है। संतरे की विशेषता क्या हो गई? खट्टा। तो संतरा कैसा है? खट्टा है। तो जिससे हमें लगे कि ये शब्द उसकी विशेषता बता रहा है तो उसे हम क्या कर देंगे? रेखांकित कर देंगे। फिर है यह नीला गुलाब है। तो बच्चों गुलाब की विशेषता क्या है? गुलाब की क्या स्पेशलिटी है? गुलाब कैसा है? नीला है। गुलाब के बारे में क्या अलग है कि यह गुलाब कैसा है? नीला है। कई गुलाब होंगे लेकिन एक के बारे में बताया गया कि यह नीला गुलाब है। अब देखिए बच्चों आपने यहाँ पर क्या देखा? ये काला, ये एक, ये खट्टा और ये नीला शब्द क्या कर रहे हैं? कौवा, गिलास, संतरा और गुलाब, इन शब्दों की बारे में हमें इनकी विशेषता बता रहे हैं, ठीक है। और कौवा, गिलास, संतरा, गुलाब, ये कौन से शब्द है बच्चों? ये हमारे संज्ञा शब्द है। किसी का नाम क्या होते हैं? संज्ञा शब्द होते हैं। तो बच्चों अब आप फिर से ध्यान से देखिए, ये हमारे संज्ञा शब्द हैं और संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहा है कि काला है। अर्थात विशेषण क्या होते हैं? वे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। और विशेषण को आपने इंग्लिश में एडजेक्टिव पढ़े हैं ना, वही होते हैं आपके विशेषण।
विशेषण अर्थात जो विशेषता बताते हैं, ठीक है। किसी की भी कोई विशेषता हो, जैसे राम एक बुद्धिमान लड़का है, तो राम कैसा लड़का है? राम बुद्धिमान लड़का है। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषता बताएगा यानी उनकी क्वालिटी जो बताते हैं क्या होते हैं? विशेषण, ठीक है। तो बच्चों आप भी अपने आसपास देखिए, आप जिस बर्तन में भोजन कर रहे हैं उसका आकार कैसा है? आपकी प्लेट बड़ी है, छोटी है, उसका आकार कैसा है, या उसका रंग, किसी भी चीज का रंग रूप कैसा है, ये सब क्या होती है? ये सब उसकी क्वालिटी ही होती है। बच्चों विशेषता का अर्थ ये नहीं होता है कि आप हमेशा या राम बुद्धिमान है, तो ये भी विशेषता है। लेकिन अगर एक वाक्य में लिखा हो कि राम मूर्ख है, ठीक है, राम मूर्ख है, तो मूर्ख होना भी क्या है? राम की विशेषता ही है। तो वो शब्द चाहे नकारात्मक हो या सकारात्मक, जो संज्ञा या सर्वनाम के बारे में बताते हैं कि उनकी विशेषता बताते हैं, वे क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। तो बच्चों अभी मैंने आपको बताया, आपके घर में, आपके आसपास जो भी चीज़ें हैं आप उनमें देखें कि उसमें विशेषता क्या है। आपके घर में अगर फैन है तो फैन कैसा है, फैन का रंग कैसा है, आकार कैसा है, ये सब क्या बताएंगे? उसके बारे में विशेषता बताएंगे। तो कुछ शब्दों को अपने घर से कुछ चीज़ों को लेकर उनकी विशेषता बताने वाले वाक्यों की रचना करें और अपने माता पिता की मदद से उनमें विशेषण लगाना सीखें। ओके नाउ स्टूडेंट्स, लेकिन मुझे पता है कि आप अब कर लेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और बच्चों अभी मैंने ये 2 वाक्य लिख रखे हैं। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ विशेषण में विशेषण जब आप पढ़ते हैं तो आप उसमें 2 चीजें पढ़ते हैं, विशेष और विशेषण। विशेष और विशेषण अभी आपकी कोर्स में इतना नहीं, लेकिन आप इसके बारे में जान लें। बच्चों देखिए, जब आपने पढ़ा कौवा काला है, तो कौवा काला है, कौवा कैसा है? काला है। तो काला शब्द क्या हो गया? विशेषण, क्योंकि ये क्या बता रहा है? विशेषण, विशेषता बता रहा है कौवे की कि कौवा कैसा है। तो हमें काला शब्द से पता चला कि कौवा काला है, तो ये क्या बता रहा है? विशेषण। लेकिन जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, ठीक है, काला कौन है? ठीक है, तो काला कौन है? कौवा। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है वे क्या कहलाते हैं? विशेष। ठीक है, जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता जिसमें जो क्वालिटी है, जिसकी क्वालिटी या विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। और जो विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे इस वाक्य में देखिए, यह नीला गुलाब है, तो विशेषता क्या है? कैसा गुलाब है? नीला। तो नीला शब्द क्या हो जाएगा? विशेषण। नीला शब्द क्या हो जाएगा? विशेषण। लेकिन किसकी विशेषता बताई गई है? कौन नीला है? गुलाब। तो गुलाब शब्द क्या हो जाएगा? विशेषण, है ना। हाय स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 32 में। तो अब आप पेज नंबर 32 पर आ जाइए, अपने कॉपी टर्न करिए और अब हम देखते हैं कि हमने क्या सीखा है। हमने सीखा संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण शब्द कैसा या कितना बनाते हैं, मैंने बताया था ना, कैसा है, कितना कपड़ा दे दो, इन सब अगर आप ऐसा प्रश्न वाक्य से पूछते हैं और वाक्य से जो उत्तर मिलता है वो क्या होता है? विशेषण। जैसे हम यहाँ पर पूछे गुलाब कैसा है, तो उत्तर मिलेगा नीला। तो गुलाब नीला है, अर्थात नीला शब्द क्या है? विशेषण है। ठीक है बच्चों, अभी आप इस बात को फिर से पढ़ेंगे तो इसे समझने में आसानी होगी। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं।
यहाँ पर नीचे दिया गया है, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर याद कीजिए। आपको विशेषण की परिभाषा बताई गई है जो कि मैंने आपको बता दिया है, तो आप विशेषण की और विशेष की परिभाषा याद करेंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हमारे अभ्यास कार्य की ओर। बच्चों सही विकल्प में सही का निशान लगाइए। हमारा पहला अभ्यास कार्य है जो दूसरे नंबर पर दिया गया है। अब यहाँ पर का वाक्य पूछा गया है, सड़क का रंग कैसा होता है। तो बच्चों ये आपके लिए बहुत सिंपल सा प्रश्न है। सड़क का रंग कैसा होता है, ऑप्शन दिए गए हैं, विकल्प जो है वे है पीला, काला या लाल। तो सड़क का रंग कैसा होता है आपको पता है, काला। तो जो दूसरा ऑप्शन है काला, उसे हम क्या कर देंगे, टिक लगा देंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सूरज का आकार कैसा है, चौड़ा, गोल, लंबा। तो सूरज कैसा होता है, गोल, ये भी आपको पता है। तो आप क्या गोल शब्द में सही का निशान लगा देंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं। आसमान कैसा है, नीला, हरा, पीला। तो बच्चों ये उत्तर आप स्वयं टिक करेंगे, आपको पता है कि आसमान कैसा होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे अभ्यास कार्य की ओर, जहाँ पर दिया गया है कि चित्रों के लिए उचित विशेषण लिखिए। तो चित्रों के लिए आपको उचित विशेषण लिखना है। ठीक है, तो बच्चों ये देखिए, ये किसका चित्र है, ये किसका चित्र है। यहाँ पर देखिए कुछ चित्र दिए गए हैं, आपको इन चित्रों के लिए विशेषण लिखना है। ठीक है, जैसे पहला हमारा एक चित्र दिया गया है फूल का, और फूल कैसा है, सफेद है। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, सफेद फूल। ठीक है, तो विशेषण क्या हो जाएगा, सफेद। तो आप लिख देंगे सफेद। अब देखिए यहाँ पर पत्ती बनी हुई है, पत्ती कैसी है, हरी। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, हरी। फिर सेब बना हुआ है, सेब की विशेषता क्या है, ये लाल है। ठीक है, या आप लिख सकते हैं छोटा, जो भी विशेषता है। लेकिन आप यहाँ पर इसके रंग के आधार पर लिख दीजिए रंग, रूप, आकार। ये जो भी शब्द इस बारे में बताते हैं वे सब क्या होते हैं, विशेषण। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, लाल। अब देखिए यहाँ पर क्या है, मटका बना हुआ है और इसका आकार कैसा है, गोल है। तो आप क्या लिख देंगे, गोल। ठीक है, तो ये इसके विशेषता हो जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे में दिया गया है रिक्त स्थानों में दिए गए विशेषणों में से सही विशेषण चुनकर भरिए। आइए हम देखते हैं हमारा अगला अभ्यास कार्य। बच्चों देखिए यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको उन शब्दों की मदद से रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। देखिए जैसे पहला वाक्य दिया गया, मनोहर डैश लड़का है। अब देखिए मनोहर कैसा लड़का है, तो अभी आपको बताना है, उसके लिए आपको यहाँ से काले, नमकीन, बुद्धिमान या शुद्ध में से कोई शब्द बनना है। तो मनोहर लड़का है, कैसा लड़का है, बुद्धिमान। तो पहले का वाक्य में हम क्या फिल करेंगे, बुद्धिमान। आप यहाँ पे लिख देंगे बुद्धिमान। तो मनोहर बुद्धिमान लड़का है, ये बन जाएगा। फिर खा में दिया गया है एक गिलास जल पिलाओ। तो एक गिलास कैसा जल पिलाओ, काले जल तो होगा नहीं, कैसा, नमकीन, नमकीन जल तो कोई पिएगा नहीं। बुद्धिमान हम पहले ही भर चुके हैं, तो अब क्या बचता है, शुद्ध। तो क्या आएगा, शुद्ध। जल की विशेषता क्या होगी कि शुद्ध जल पिलाओ। तो आप क्या फिल करेंगे, शुद्ध। फिर आकाश में डैश बादल छाए हुए हैं। तो आकाश में कैसे बादल, अब हमारे पास दो शब्द बचे हैं, काले और नमकीन। तो नमकीन बादल नहीं होते हैं, कैसे बादल होंगे, काले। बच्चों आपको भी पता है, आप ये कर लेंगे आसानी से, काले बादल छाए हुए हैं। और अगला क्या बचा है, ये बिस्किट, ये बिस्कुट कैसे हैं, नमकीन है। तो अब आप ये पूरा कर लेंगे। नीचे दिया गया है आम और पतंग का चित्र बनाकर रंग भरिए और उनके लिए कोई सुंदर सा विशेषण भी लिखिए। बच्चों यहाँ पर आपको एक आम का चित्र बनाना है और एक पतंग बनानी है। ठीक है, तो आप पतंग बनाएंगे और पतंग को जो भी रंग उसमें भरेंगे उस रंग के अनुसार नीली पतंग, लाल पतंग, पीली पतंग, हरी पतंग, इस प्रकार से उसके साथ विशेषण लिख देंगे। और ऐसे ही आम का चित्र बनाएंगे और उसके साथ लिख देंगे पका आम, पीला आम, या जो भी आपको कच्चा आम,
ये सब भी क्या उसकी विशेषता है। तो बच्चों ये आपको स्वयं करना है। ओके, सो स्टूडेंट्स, that's enough for today. We will meet again in our next class. Till then, complete your homework and also learn. Okay, thank you. Bye bye.